student. My name is Neha and I am your chemistry teacher. The first chapter of chemistry is some basic concept of chemistry. Before starting the chapter, we will see the syllabus of 11th chemistry. Then we will see the definition of chemistry, branches of chemistry, which are the branches of chemistry. Then we will see the chapter, some basic concept of chemistry. In that, we will see what is the matter, what is pure substance, what is element, what is compound, what is mixture. Then first of all I want to say you that प्लीज़ बुक और पेन लेके बैठो. मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी दिख रहा है तुम्हें, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो कॉपी करते चलो. एक बुक बना लो केमिस्ट्री की. सो वी स्टार्टेड विद द सिलेबस. Start with syllabus. Okay, so your syllabus is some basic concept of chemistry. Your syllabus designed on the basis of branches of chemistry. The syllabus is designed on the basis of branches of chemistry. Like your first chapter is depend on physical chemistry. Okay, your first chapter is depend on physical chemistry. Then your second and third chapter is depend on like introduction to analytical chemistry and basic analytical techniques. Itself suggests this is depend on analytical chemistry. Analytical chemistry. Then structure of atom. This is also on the basis of physical chemistry. Then next, chemical bonding, redox reaction, modern periodic table, element of group 1 and 2, element of group 13, 14 and 15. These lessons, these 5 lessons are depend on inorganic chemistry. Inorganic chemistry. Okay. Then states of matter. This is based on physical chemistry. This is based on physical chemistry. Adsorption of colloids, chemical equilibrium. These also are based on physical chemistry. Then your chapter 13, nuclear chemistry and radioactivity. These depend on nuclear chemistry. ये ब्रांच जल्द ही बहुत ज़्यादा स्कोप, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है. देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स. दिस इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. विच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज डिपेंड ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, देन वी विल सी what is the chemistry, what is the role of chemistry. Chemistry is a central science of all subjects. Okay, like your physics, like your biology, like your physics, biology, then your chemical science, then your geology, astronomy. Astronomy is not directly related with chemistry. It depends on physics, but physics is depend on chemistry. Like same as like maths. Maths is depend on physics, but physics is depend on chemistry. Your medicinal chemistry is also depend on chemistry. Like how medicine is depend on chemistry. We will see that जो structure रहते हैं medicines के, तो वो structure क्या में रहते हैं? Chemistry में रहते हैं. So medicinal chemistry is directly depend on chemistry. Then your biology. How biology is depend on chemistry? Like for example, blood is a part of biology. Okay, blood, but the composition of blood is depend on chemistry, so it is also a part of chemistry. Then biochemistry. How biochemistry is depend on chemistry? Same as living organisms consist so many like plant. Photosynthesis reaction जो होती है प्लांट में, वो डिपेंड करती है केमिस्ट्री पे. जैसे CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, then O2 रिलीज कर रहे हैं, ये डिपेंड है केमिस्ट्री पे. Then your DNA, protein, vitamin, these are included in biochemistry. So इस तरह से biochemistry डिपेंड है केमिस्ट्री पे. Then chemical physics, जो chemical physics है, like your thermodynamics, these are depend on chemical physics, these are depend on chemistry. से इसलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल साइंस है ऑल सब्जेक्ट का. नेक्स्ट वी विल सी definition of chemistry. What is the definition of
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, यही सब केमिस्ट्री है. लाइक हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है वो केमिस्ट्री एक टाइप की. देन जो हम सुबह से लेके पेस्ट यूज करते हैं वो भी केमिस्ट्री से, तो रात को सोने तक हम जो फेस वॉश जो यूज करते हैं वो सब मेडिसिन, जो केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री है. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. फर्स्ट, व्हाट इज मैटर? मैटर मीन्स any body, any species which occupy space, and having mass is matter. Okay, so chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties, then transformation from one form to another form, and the energy that accompanies its transformation. मतलब समझो हमने शुगर ली, तो शुगर का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अ मैटर बिकॉज इट हैव शेप एंड मास. सो शुगर ली तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कर रहा है नहीं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस इज द एग्जांपल. So chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties, transformation from one form to another. Energy, यहाँ पे matter का transformation from one form to another होगा, and then the energy that accompanies its transformation. Then we will see the branches of chemistry. What are the branches of chemistry? There are mainly 5 branches of chemistry. So which are the branches of chemistry? We will see. Sorry, excuse. There are mainly 5 branches of chemistry. One second. Like organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry, and analytical chemistry. So, organic chemistry is what? Organic chemistry means the study of carbon-related compounds is organic chemistry. So, in medicine, in food, we will say carbon-related compounds. So, they are the branches of organic chemistry, like medicinal chemistry, food chemistry. These are the branches of organic chemistry. Inorganic chemistry क्या है? Inorganic chemistry, study of elements other than carbon. Study of elements other than carbon. Like every element, iron हो गया, then sodium, potassium. These are included in inorganic chemistry. Okay, but इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या देखते हैं? मिनरल्स, सॉल्ट्स, मेटल्स, ये जो हम देखते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं. देन फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? लॉज. ओके, लॉज देखते हैं, बड़े बड़े थेरीज. देन एनर्जी, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सब हम क्या देखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में. देन बायोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेटेड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री है. देन एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? सेपरेशन, देन purification and identification. Okay, ये हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में. ओके, समझो हमें कोई पत्थर मिला, मतलब कोई पत्थर नहीं, समझो मिट्टी से भरा हुआ कुछ बॉल मिला समझो, तो उसे हमने क्लीन किया. ओके, देन उसको सेपरेट किया समझो, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखे तो हमने उसे केमिकल मेथड से सेपरेट किया. देन आइडेंटिफाई किया कि वो कौन सा मेटल है, समझो गोल्ड निकला. सो हमने उसका प्यूरिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया. देन उसका हमने क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन किया कि उसकी क्वालिटी कितनी है, कि वो 1 कैरेट का है, कि 2 कैरेट का है, कि 24 कैरेट का है. तो ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया. तो ये सब आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में. देन वी से सम अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, some other branches of chemistry like nanochemistry, nuclear chemistry. One second, 7. Like nanochemistry, this is a branch of organic chemistry.
sub branch: medicinal chemistry, then food chemistry, then forensic chemistry. These are some other branches of chemistry, like combinatorial chemistry, astrochemistry, environmental, solid state, material, forensic. अब नैनो केमिस्ट्री में क्या है, जो एकदम नैनो पार्टिकल है, जो हम नहीं देख सकते, उनकी जो केमिस्ट्री है उसे नैनो केमिस्ट्री कहते हैं. देन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री, देन एस्ट्रोकेमिस्ट्री. एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या रहता है, जो रिलेटेड विद प्लैनेट, प्लैनेट से जो रिलेटेड रहती है केमिस्ट्री, वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट से रिलेटेड. फूड केमिस्ट्री, फूड से रिलेटेड. सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मीन्स सॉलिड सब्सटेंसेस जो रहते हैं उनकी शेप से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, मतलब NaCl का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. मटेरियल केमिस्ट्री लाइक पॉलीमर, सिलिकॉन चिप्स, ये जो माइक्रो प्रोसेसर, ये जो केमिस्ट्री है वो मटेरियल केमिस्ट्री है. देन फॉरेंसिक केमिस्ट्री. फॉरेंसिक सबको पता होगा, CID में देखा होगा फॉरेंसिक केमिस्ट्री क्या रहती है, मतलब कोई चीज़ का डिटेक्शन करना. अब ड्रग लिया किसी ने तो वो ड्रग कौन सा लिया, कितने अमाउंट में लिया, ये सब फॉरेंसिक केमिस्ट्री. मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स मेडिसिन बनाना, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब कौन सी मेडिसिन किसके लिए काम आएंगे, ये मेडिकल केमिस्ट्री में आएगा. देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सब के हम डेफिनेशन देखेंगे. What is the definition of physical chemistry? Okay, it deals with the study of matter, energy, theories, laws, principles that explain the transformation of matter from one form to another. मतलब जिसमें हम मैटर की स्टडी करेंगे, एनर्जी की स्टडी करेंगे, थेरीज, लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे. बट वो थेरीज, प्रिंसिपल, लॉज हमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री. देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नोट्स निकालते चलो, अपने अपने नोट्स प्रोवाइड करके देंगे, ऐसा नहीं कि नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, बट अभी के लिए समझ में आना बोल के एट अ टाइम राइटिंग नोट्स निकालते चलो. एंड सॉरी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माइंड बी एकेडमी. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट. एंड आई वांट टू आल्सो से दैट अभी 10th का रिजल्ट नहीं लगा है तो पढ़ाई करना मत छोड़ो, पढ़ाई करो अभी से. डेली 4 to 5 आवर्स तक स्टडी करो, मैक्सिमम 4 to 5, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दो. उसके बाद जो नहीं जमता है वो करो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो. अगर बुक्स होंगी स्टेट बोर्ड, NCERT, तो अच्छा है कि तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ाई करो, तो तुम जाके तुम्हारे कहाँ गोल तक पहुँच पाओगे. जो भी है, IIT, JEE क्रैक करना, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी तुम्हारा सपना है तो हो सकेगा. सो अभी से पढ़ाई करो और अभी से तुम्हारा बेस्ट दो, डू योर बेस्ट फ्रॉम अभी से. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स व्हाट, इट डील्स विथ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन. मतलब कार्बन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बट कार्बन के कुछ कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, लाइक कार्बोनिल्स, लाइक कार्बाइड्स, कार्बोनिल्स एंड कार्बोनेट्स. अब कार्बोनिल्स क्या है, कार्बोनिल्स मतलब ये ऑर्गेनोमेटालिक का पार्ट है, लाइक FeCO टेकन 9 टाइम्स, दिस इज कंपाउंड. ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं क्योंकि ये CO मींस कार्बोनिल कंपाउंड. देन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड सबने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बाइड, तो ये कार्बाइड्स, ये क्या में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बोनेट्स हमने देखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, इसे ही बोलते हैं. खाने के सोडे को क्या बोलते हैं, मीन्स बेकिंग सोडे को क्या बोलते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड धोने को सोडे को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट. ओके. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो मोस्टली जो मेडिसिन की मेडिसिनल रिएक्शन, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो से रिलेटेड है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. देन यूर फूड केमिस्ट्री, फूड मोस्टली फूड जो बनते हैं वो भी कैसे रिलेटेड रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. ओके. देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड योर बायोकेमिस्ट्री. Analytical chemistry and biochemistry. Analytical chemistry, it deals with the separation, identification and quantitative determination of the compound. As हमने पहले देखा था
कि हमें एक और मिला, उसे हमने सेपरेट किया, आइडेंटिफाई किया और डिटर्मिनेशन किया। तो सेपरेशन करने के बाद हमें आइडेंटिफाई क्या हुआ, उसको सेपरेट किया हमने, हमें एक मेटल मिला और वो मेटल था गोल्ड का, उसका हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, वो निकला 24 कैरेट का। ये हो गया एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब हमें जो चीज़ मिली है उसे हमने सेपरेट किया, उसे हमने आइडेंटिफाई किया, उसे हमने क्वालिटी चेक की, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सब्सटेंसेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी, मतलब बायोकेमिस्ट्री। तो हमने फोटोसिंथेसिस देखा। फोटोसिंथेसिस सभी को पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या है, पर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए फोटोसिंथेसिस, ये जो रिएक्शन है ये प्लांट में होती है। प्लांट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, सॉरी क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, उसके अंदर ये रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन क्या करती है? ग्लूकोज फॉर्म करती है। ग्लूकोज जो हमें मिलता है प्लांट से, फूड ग्रेन्स वगैरह, उसे ग्लूकोज कहते हैं, फूड ग्रेन्स, तो इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स अस C6H12O6, ये ग्लूकोज मीन्स फूड, प्लस ऑक्सीजन O2। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? C6 है तो C6, H कितने हैं? 12, मतलब 6 to the 12 और ये 6। रिएक्शन बैलेंस है, कैसे चेक करना? 6 to the 12, 12 ऑक्सीजन हो गए और 6 ऑक्सीजन, मतलब 18 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। यहाँ पे कितने हो गए? 6 और 6 to the 12, 12 plus 6 18 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 12 है, 6 to the 12 12 हाइड्रोजन है, C6 है, C6 है। ओके, इस तरह से हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब आगे हम डिटेल में देखेंगे रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, अभी का इतना। Then there are some other branches of chemistry like environmental chemistry, pharmaceutical chemistry, nuclear chemistry. Okay, there are some other branches of chemistry. Then importance and scope of chemistry. अब फूड में क्या स्कोप हो सकता है केमिस्ट्री का? तो पहले जब हम देखते हैं, अगर पुराने ज़माने में, तो फूड है ना बहुत कम उगता था, मतलब इतनी सारी ज़मीन रह के फूड बहुत कम था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कम ज़मीन रह के भी फूड बहुत ज़्यादा उगता है। ये कैसे हुआ? तो गुड क्वालिटी के हमने क्या यूज़ किए? फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए। फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, गुड क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्या हुआ कि हम एक पेड़ पे पहले जहाँ हम 50 आम उगाते थे वहाँ पे हम अब 100 आम उगाने लगे इंसेक्टिसाइड यूज़ करके। अब पहले जो हमारी फसल खराब हो जाती थी कीटाणु से, मतलब अड़ी वगैरह से, तो उसके लिए हमने इंसेक्टिसाइड तैयार किया। तो वो इंसेक्टिसाइड से हमने वो भी रिड्यूस किया, तो हमारी जो फसल है वो अच्छी, मतलब जो क्रॉप है वो एकदम अच्छी उग रही है। तो किसकी वजह से? फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड की वजह से। तो गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड की वजह से हमारी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये जो फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं हर टाइम। अब तुमने देखना ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है, पर उसके कुछ साल बाद तक नहीं ये फर्टिलाइजर उससे ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं फर्टिलाइजर्स में। तो ये कहाँ होता है? ये केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। जो फर्टिलाइजर्स के स्ट्रक्चर रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में बनते हैं फर्टिलाइजर्स। इसके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो चेंज कौन करता है? केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, वही लोग करते हैं। देन शेल्टर, ओके, देन वी विल सी शेल्टर, हाउ शेल्टर इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री, व्हाट इज द स्कोप इन दिस। हम देखते हैं आयरन, स्टील, देन सीमेंट, ये हमें सब घर बनाने के लिए लगता है। पहले के घर एक मंजिल के रहते थे पर खराब हो जाते थे जल्दी से। तो क्यों होते थे? क्योंकि सीमेंट अच्छा नहीं रहता था। उसके बाद जो आयरन की क्वालिटी, जो लोखंड की क्वालिटी रहती थी वो अच्छी नहीं रहती थी। आजकल हम क्या देखते हैं? जंग रोधक सीमेंट, मतलब जिसको जंग नहीं लगेंगे, मतलब जो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा जंग लगने से, ऐसा सीमेंट हम देखते हैं आजकल। तो वो कहाँ से इम्प्रूव हुआ सीमेंट इतना? तो उसे केमिस्ट्री से इम्प्रूव किया गया। देन हम देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, जो इन्हें ना प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? तो केमिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इन्हें प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो ये हो गया शेल्टर से रिलेटेड। देन ड्रग्स, अब ड्रग्स के लिए हमें समझो, अब मेडिसिन लाइक एड्स सबसे खतरनाक बीमारी है, इसकी मेडिसिन है अजीडोथाइमिडीन, AZT, अजीडोथाइमिडीन। तो ये जो मेडिसिन है ये
प्लांट से आइसोलेट की गई है, मतलब प्लांट से ये मेडिसिन निकाली गई है और इसे बनाया गया है केमिकल लैबोरेटरी। ऐसा नहीं कि प्लांट का एक टुकड़ा तोड़ दिया और ये लो खा लो तुम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्लांट से इसे निकाला गया, आइसोलेट किया गया, देन इसे केमिकल लैबोरेटरी में जाके प्रिपेयर किया एंड देन ये मेडिसिन हमें मिली है अजीडोथायमिडिन एड्स के लिए। सेम इसी तरह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए हमने मतलब केमिकल लैबोरेटरी में दवाई बनाई है, लाइक सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल। ये जो दवाई है, ये मेडिसिन हमने केमिकल लैबोरेटरीज में बनाई है। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो जाए, केमिकल लैबोरेटरी इज सेम थिंग। ओके, देन एल्डोपा, ये पार्किंसंस डिजीज के लिए यूज होती है। एल्डोपा दिस इज यूज फॉर पार्किंसंस डिजीज। देन एनर्जी, अब एनर्जी में क्या आएगा, हम बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो भी गैसेस है वगैरह, तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे। अब आदत तो पड़ गई है, अब इसके लिए कुछ ना कुछ हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमको अगर कॉटन के क्लोथ से मिले, हम नायलॉन के क्लोथ से काम चला लेते हैं। सो इन दैट वे अब क्या चल रहा है, अब जो सनलाइट पृथ्वी पे गिरती है, अर्थ पे जो सनलाइट गिरती है उसका यूज तो नहीं है, वो वेस्ट हो रही है। तो अब हमने सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना शुरू किया है। सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बहुत सारे जनों ने सुना होगा कि सोलर पैनल अगर लगा दी तो बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से क्या होता है, जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और हमें पता है आजकल बहुत सी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे निकली है। सो अगर हम सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो आगे चल के हमें अगर पेट्रोल डीजल खत्म भी हुए तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देन मटेरियल्स मीन्स, अब प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक इज लाइक मटेरियल। तो पहले हम देखते थे कि प्लास्टिक कैसा था, थोड़ा सा दबाए तो टूट जाते थे, हमारे मतलब जग वगैरह जो हम यूज करते थे, प्लास्टिक की बकेट्स वगैरह टूट जाती थी। बट अब जो प्लास्टिक आया वो कैसा है, उससे टूटता है क्या, नहीं टूटता है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है प्लास्टिक के अंदर भी। सेम वैसे पॉलीमर्स में, लाइक हम कंप्यूटर्स देखते हैं, सिलिकॉन चिप्स रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन चिप्स रहती है। तो हर 1-1.5 साल में सिलिकॉन चिप्स में डेवलपमेंट, उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में डेवलपमेंट करते हैं। तो इसमें एक स्कोप है, हर 2 साल में, 1-1.5 साल में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये एक डेवलपमेंट है। देन नेक्स्ट वी विल सी आवर चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, first point of our chapter, matter, which occupy space and having mass is known as matter. Okay, अब प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। प्योर सब्सटेंस ये 2 एलिमेंट से बना है, एलिमेंट से, ओके, एलिमेंट से जो बना है, 2 नहीं, एलिमेंट से बना है। Pure substance is made from element, okay, 2 or more element, okay, 2 or more elements, so pure substance ये है। इसे हम केमिकल मेथड से ही डिफरेंस, मतलब अब समझो हमने NaCl लिया है, समझो NaCl। अब इसे हमें ब्रेक करना है, तो हम इसे सिर्फ टेस्ट करके, देख करके, वाटर में डिजोल्व करके हम इसे अलग नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम जब केमिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे तब ये ब्रेक होगा। तो प्योर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रोकन करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। और प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो कंपोजिशन रहता है वो सभी का सेम रहता है, कंपोजिशन सेम रहता है, ओके, प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और मिक्सचर क्या है, 2 प्योर सब्सटेंस को मिला के जो बनता है वो मिक्सचर रहता है, ओके। सो इसकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेट कंपोजिशन भी नहीं रहता है, कंपोजिशन डेफिनेट नहीं रहता है एंड प्रॉपर्टी भी डेफिनेट नहीं रहती है, ओके। सो इसमें एलिमेंट और कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर के एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो एलिमेंट क्या है,
अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट है, समझो गोल्ड लिया हमने तो ये एक एलिमेंट है, सो इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी मेथड, केमिकल मेथड लो, कोई भी लो, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड मीन्स क्या, दो एलिमेंट को बना के जो बना है, मतलब H2O ये कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, दो एलिमेंट को बना के जो बना है वो कंपाउंड है, तो इसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, 2:1 ही रहेगा। सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। देन मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जो मिक्स हो जाए, मतलब ये देख रहे हो तुम ग्रीन ऑरेंज ये सब मिक्स हो चुके हैं, बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है, यहाँ पे एक सेपरेशन आ गया है, ये नीचे अलग हो गया, ऊपर अलग हो गया। सेम एग्जांपल लिया तो शुगर सॉल्यूशन, अगर हमने वाटर में शुगर डाल दी और डिसॉल्व की, तो जैसे वाटर है सेम वैसे ही दिखेगा, जैसा वाटर था वैसे ही वाटर दिखने वाला है। पर अगर अगर हमने वाटर के अंदर राइस डाल दिए तो राइस दिख के आएंगे नीचे नीचे। ओके, दिस आर द राइस एंड दिस इज अ वाटर। ओके, तो ये जो एक सेपरेशन, ये एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, और ये यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है। ओके, सो वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मैटर। 1 second. Any species having mass occupying space is known as matter. Okay, so matter is present in 3 states: solid, liquid and gas. अब ये पेन समझो, पेन, अब इसका पर्टिकुलर शेप है एंड पर्टिकुलर वॉल्यूम है, सो हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, सो लिक्विड, अगर हम लिक्विड को देखेंगे, अगर हम उसको जग में डाल देंगे तो जग का आकार ले लेगा, अगर कोई कंटेनर में डाल देंगे तो कंटेनर का आकार ले लेगा। तो लिक्विड को डेफिनेट शेप है क्या, नहीं है, बट डेफिनेट वॉल्यूम है। उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, मतलब तुमने समझो 1 लीटर पानी लिया, उसको अगर हर कंटेनर में डाल तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, सो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। ओके, और गैसेस का ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम विच गैस। ओके, सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस एक मैटर का फॉर्म है जिसका डेफिनेट कंपोजिशन रहता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है। समझो हमने सॉल्ट लिया एंड शुगर लिया, और दोनों सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। अब सॉल्ट क्या है, टेस्ट में सॉल्टी है, ओके, और शुगर क्या है, स्वीट है, बट बोथ डिजोल्व इन वाटर। ओके, ये प्रॉपर्टी है शुगर की और सॉल्ट की, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर और टेस्ट इज सॉल्टी। अगर हम इसका अपीयरेंस देखें, अगर हमने पीसे वाली शक्कर ली और पीसे वाली शुगर लिया, अब इन दोनों को अपीयरेंस से मतलब देख के तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। फिर हमने उसका स्मेल लिया, अब स्मेल से भी कुछ पता नहीं चल रहा, हालांकि स्वीट स्मेल कर रहा है और ये तो स्मेल ही नहीं कर रहा। उसके बाद हमने इसको टेस्ट किया, हर चीज टेस्ट करनी नहीं रहती है लेकिन ना, कुछ चीज़ों को ही टेस्ट कर सकते, तो ये स्वीट था और ये सॉल्टी था। इसका डिसोल्यूशन देखा, वाटर में सोल्यूबल है, दोनों सोल्यूबल निकले, तो ये प्रॉपर्टीज है दोनों की अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हर एक की अलग अलग थी। तो सब्सटेंस क्या है, अ सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। उसका एक डेफिनेट कंपोजिशन रहेगा और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज रहेंगी, लाइक शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड प्लास्टिक। अब शुगर और सॉल्ट का देख ले, शुगर और प्लास्टिक, अगर हमने सेम शुगर के टाइप में प्लास्टिक लिया और उन दोनों को देखा, अपीयरेंस दोनों सेम दिख रहा है, टेस्ट किया, एक तो टेस्ट आ रहा है, एक टेस्टलेस है, और फिर उसके बाद इस पे से डिस्टिंग्विश कर लिया कि टेस्ट से, बट उसके बाद हमने इसको पानी में डिसॉल्व करके दिया, वाटर में डिसॉल्व करके दिया, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर बट प्लास्टिक डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सो उस बेसिस पे हमने उन दोनों को डिफरेंशिएट किया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। So substance can differ from each other on the basis of composition। तो हम उसको काय पे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपोजिशन पे से, और बाय देयर अपीयरेंस, मतलब उसको देखने पे से, उसकी टेस्ट पे से, उसकी स्मेल पे से, और उसका इंटरेक्शन विद अदर, मतलब किसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बाय हीटिंग, उसका हीट करने पे उसका क्या रिएक्शन है, देन डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी में घुलता है नहीं घुलता है, देन रिएक्शन विथ रिएजेंट्स। इस बेसिस पे हम सब्सटेंस को
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. देन वी विल सी मिक्सचर. नाउ वी विल सी मिक्सचर, सॉरी प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मतलब समझो एग्जांपल लिया गोल्ड का. ओके, अब इसको कहीं से भी कट करो, केमिकल कंपोजिशन सेम ही निकलेगा. ठीक है. देन दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज. अब कहीं से भी लिया तो सेम प्रॉपर्टी रहेंगी. ओके, अगर समझो हमने वाटर लिया, अगर हमने नदी का पानी लिया तो भी वो H2O रहेगा, घर का पानी लिया तो भी वो H2O रहेगा, सागर का पानी लिया, समुद्र का पानी लिया तो भी वो H2O रहेगा. मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन है उसका, डेफिनेट कंपोजिशन है, और सेम प्रॉपर्टी कहीं का भी लो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे. इट हैव सेम प्रॉपर्टी. ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और जिसकी प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है. प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू, एलिमेंट एंड कंपाउंड. इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो प्योर सब्सटेंस इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते. लाइक हमने गोल्ड लिया है, गोल्ड का कोई भी भाग निकालो वो गोल्ड ही रहने वाला है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, ये हो गया एलिमेंट. देन एलिमेंट्स की टाइप है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. अब सभी को पता है मेटल कैसे रहते हैं? शाइनी रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं. ओके, सो we'll see metal have a luster, means they are a shiny, conduct heat and electricity. अब हम देखते हैं पत्थर, जो पत्थरे रहते हैं घर के ऊपर, वो कैसे रहते हैं? एकदम थीन शीट्स रहते हैं. तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो लोखंड को थीन शीट्स में कन्वर्ट करती है, उसको मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. एंड हम देखते हैं कॉपर, कॉपर वायर हम देखते हैं, तो कॉपर वायर में कन्वर्ट होता है, तो उसको डक्टाइल कहते हैं. तो अगर वो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर है तो डक्टाइल है, एंड कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट्स, देन इट इज मैलिएबल. सो हम पत्थर को ठोक के हैमर करके थीन शीट्स बनाते तो मैलिएबल प्रॉपर्टी है. एंड कॉपर वायर ड्रॉन इनटू वायर, सो इट इज डक्टाइल. सो एग्जांपल्स आर गोल्ड, silver, copper, iron. These are the example of metals. Okay, then we will say that gold is shiny. Okay, silver is shiny, copper is shiny, iron is shiny, or they are good conductor of electricity and heat. अगर हम कोई कॉपर वायर समझो, लोखंड को ही समझ लो, पकड़ के हम अगर आग में खड़े रहे तो कुछ देर बाद हमें चटका बैठेगा. तो क्यों बैठेगा? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. यही हम लकड़ी को लेके बैठेंगे तो लकड़ी पूरी जल जाएंगी पीछे तक, बट हमें चटका बैठेगा नहीं बैठेगा. सो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को पारा कहते हैं, पारा. ओके, इज अ लिक्विड मेटल. ये लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर. ओके, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट दिस इज अ मेटल. ओके, metal, mostly metal are in a solid state. Okay, so that solid or maybe liquid, so mostly solid metals are in a solid state, but mercury is only in a liquid state metal. Okay, this is an exception. This is exception case, mercury. Then non metals have a luster, means they have shiny appearance. No, non-metals does not have shiny appearance, have no luster. Exception, diamond and iodine. Diamond and iodine, diamond तो सभी को पता है कि चमकता है, and iodine also shiny. They are a poor conductor of heat and electricity. मतलब poor conductor है, मतलब जल्दी से heat और electricity को catch नहीं करते. Exception graphite, because it is a good conductor of heat and electricity. Next, cannot be hammered into thin sheets, मतलब they are not malleable, or drawn into ice, मतलब they are not ductile. They are not malleable, they are not ductile because they are brittle. मतलब अगर उसको हैमर करने जाएंगे तो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका. सो एग्जाम्पल आर आयोडीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. मतलब अगर हमने कोयला लिया, कोयला अगर हम उसको हैमर करने देंगे तो थीन शीट्स में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा. क्यों? तो क्योंकि वो ब्रिटल है, ब्रेक हो जाएगा वो. Then next we will see
मिक्सचर, मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब टू और मोर सब्सटेंस से बना है mixture which is known as component. Mixture have no definite chemical composition, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगा क्या? नहीं, उसका कुछ डेफिनेट नहीं रहेगा. जैसे प्योर सब्सटेंस में हमने देखा है कि अगर जितना हम लेंगे गोल्ड उतना ही रहेगा. वाटर, अगर वाटर लिया समझो H2O, तो वो 2:1 के ही रेशियो में रहेगा. ओके, एंड हैज हिंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज. एक सेकेंड सॉरी, हमने मेटल एंड नॉन मेटल देखा है, मेटलॉइड देखा ही नहीं. एक सेकेंड, मेटलॉइड सॉरी मेटलॉइड्स. अब हमने मेटल देखे थे पहले, मेटल देखे, नॉन मेटल देखे, अब ये है सेमी मेटल, मेटलॉइड्स. इन दोनों के बीच में की जो प्रॉपर्टीज है वो रहती है मेटलॉइड में. तो सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में की प्रॉपर्टी, मतलब सम आर शाइनी, सम आर नॉट शाइनी, मतलब ये थोड़े कम शाइनी. देन मैलिएबल, डक्टाइल, उन दोनों के बीच में की प्रॉपर्टी. तो इन दोनों के बीच में की प्रॉपर्टी, तो दे आर कॉल्ड एज सेमी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. नेक्स्ट कंपाउंड. अब कंपाउंड क्या है? These are also the example of pure substance. Compounds are the pure substance which cannot be broken down into simpler substance. मतलब हम कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज. मतलब ऊपरा ऊपरी केमिकल चेंज से हम उसे चेंज नहीं कर सकते. इन अ कंपाउंड 2 or 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है. जैसे सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl 1:1 प्रोपोर्शन है. अब अगर हम इसको कुछ केमिकल चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, Na+Cl-. नेक्स्ट वाटर, H2O, फिक्स्ड रेशियो 2:1. अगर हम इस पे केमिकल चेंज करेंगे तो ये निकलेगा H+OH-. देन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 1:3 रेशियो. अगर इस पे हम केमिकल चेंज करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा? Ca+CO3-. ओके, then next we will see pure mixture. Mixture. So हमने देखा था mixture is composed of 2 or more substance which known as component. Mixture have no definite chemical composition. मतलब इसमें कोई भी जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो डेफिनेट रहेगा क्या? नहीं. नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. And no definite properties and no definite properties. Okay, example इसका दिया है पेंट. ओके, पेंट दिया है. अब मिक्सचर मतलब क्या? जिसमें अब ऑयल कितना लेना है. अब समझो हमने 1:1 का रेशो लिया. अब 1 मोल ऑफ ऑयल लिया, 1 समझो 10 ग्राम ऑयल लिया, 10 ग्राम पिगमेंट लिया, 10 ml एडिटिव लिया, ml 10 ml 10 ml 10 ml. सो हर इसमें यही मिक्सचर रहेगा जरूरी नहीं है. कहीं 20 ml ऑयल रहेगा, कहीं 10 ml पिगमेंट रहेंगे, कहीं 5 ml एडिटिव रहेगा, ऐसे भी रह सकता है. सो जहाँ पे डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है उसे हम क्या कह रहे हैं? मिक्सचर. जहाँ पे डेफिनेट मतलब प्रपोर्शन नहीं रहने वाला है. लाइक सैंड, कंक्रीट. कंक्रीट मतलब हम जब घर बांधते हैं वो मिक्सचर बनाते हैं, रेती, सीमेंट और पानी का, उससे बोलते हैं. अब कितना सैंड लेंगे? अगर हमने एक थैला सैंड लिया तो एक थैला हम सीमेंट थोड़ी लेते हैं, एक थैला हम वाटर थोड़ी लेते हैं. उसका एक मतलब फिक्स कंपोजिशन नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स. अब 2 टाइप के मिक्सचर रहते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस. अब होमोजेनस मिक्सचर हमने देखा था शुगर सॉल्यूशन. अब हम शुगर सॉल्यूशन बनाते तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है और पूरा मिक्स हो जाता है. शुगर पानी के अंदर पूरी मिक्स होकर एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाती है. वही राइस और शुगर का क्या रहता है? राइस क्या नीचे चल जाता है, राइस एंड शुगर ऊपर आ जाएगा. सो ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है क्या? नहीं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है. बट वो मिक्स हो गया, बट यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है. सो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर अंडरगोस कंप्लीट मिक्सिंग फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगा, उसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर. देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज व्हाट?
Heterogeneous mixture undergo mixing but do not form entirely uniform mixture. मतलब entirely uniform mixture नहीं बनाएगा heterogeneous mixture. Next, अब सॉलिड लिक्विड गैस हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे. कितने स्टेट्स ऑफ मैटर थे? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वन एक और है प्लाज्मा बोल के, बट वो नहीं है यहाँ पे. सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड गैस आल्सो डज नॉट हैव डेफिनेट शेप. उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम है और यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. ओके यहाँ पे रिजिड मतलब यहाँ पे एक दूसरे के एकदम अटैच है तो रिजिड है. यहाँ पे रिजिड है क्या? नहीं, फार अवे, नॉट रिजिड. और यहाँ पे बहुत फार अवे तो not rigid. Okay, then we will see the summary of matter, pure substance. Summary of matter मतलब क्या है? Occupy space, having mass, exists as solid, liquid और gas. Matter क्या है? जिसको space occupy करता और जिसको mass है वो matter. अब matter बोले तो book, pen, pencil, air, water, anything जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसका मास है. ओके, इज नोन एज मैटर. ओके, देन प्योर सब्सटेंस. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. अब प्योर सब्सटेंस क्या है? मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज. मतलब जिसका केमिकल कंपोजिशन इनवेरिएंट मतलब बदलता नहीं हो, कोई भी कहीं से भी उठाया तो वो सेम ही रहेगा. जैसे ग्लूकोज, लाइक ग्लूकोज कहीं से भी लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है C6H12O6 और प्रॉपर्टी वही है, फूड ही है, वो चेंज नहीं हो जाएगा. यही यहाँ फूड है यहाँ कुछ और है. तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज मतलब सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी और इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होगा. केमिकल कंपोजिशन हमेशा केमिकल कंपोजिशन C6H12O6 ही रहने वाला है. सो प्योर सब्सटेंस क्या है? इनवेरिएंट केमिकल मतलब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज. मिक्सचर क्या है? मैटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more pure substance, 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस बना. लाइक ऑयल आर प्योर सब्सटेंस. ऑयल नहीं, नो ऑयल नॉट ऑयल. लाइक concrete, like cement plus 2 pure substances like H2O plus NaCl. Okay, 2 pure substances. These are pure substances. Sorry, those are mixture, oil and H2O and NaCl. 2 or more pure substances that retain their individual identities. अब ये पानी है और ये नमक है. Individual identities है उनकी, ठीक है. And they cannot be, they can be separated. ये can be separated है. They can be separated by physical methods. Like अगर हम इन दोनों को मिलाया और हीट किया तो हमें नमक अलग मिल जाएगा और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमें मिल जाएगा. ओके, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते और इसे हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू 2 एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. जैसे हमने देखा था, एलिमेंट क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स. मतलब गोल्ड को हम और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो बाय केमिकल मेथड्स, कोई भी केमिकल मेथड्स कुछ भी किसी से भी हम इसे चेंज नहीं कर सकते. गोल्ड ही रहेगा, कहीं से भी ले लो उसे, मेटल है क्योंकि. देन कंपाउंड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स लाइक H2O. 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन फिक्स प्रोपोर्शन. फिक्स प्रोपोर्शन कहीं से भी पानी उठा लो, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, 2:1 ही रहने वाला है. एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मेथड्स. मतलब हम इसको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. अगर हम इसे केमिकल मेथड इसके ऊपर केमिकल मेथड करेंगे तो हमें मिलेगा H प्लस OH-. सो ये सेपरेट होगा क्या? ये सेपरेट नहीं होगा, ये भी सेपरेट नहीं होगा, ये सेपरेट होगा.
ये सेपरेट होगा. देन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. समझो अब ये शुगर सॉल्यूशन है, शक्कर मिले वाली है इस पानी के अंदर. ओके तो अगर हमने यहाँ से शुगर सॉल्यूशन उठाया थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा उठाया, और यहाँ से थोड़ा सा उठाया, मतलब 3 लेयर्स, ऊपर से, बीच में से और नीचे से हमने उठाया, तो सभी की सभी शुगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी. सेम रहने वाली ना. नीचे का नमक का पानी तो नहीं हो जाएगा, शुगर का सॉल्यूशन ही रहने वाला, या फिर शुगर अलग तो नहीं हो जाएंगे, पूरा शुगर सॉल्यूशन सेम रहेगा. सो थ्रू आउट द सेम प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए बोला है प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेम, मतलब मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एक तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेम रहेंगे, मतलब कहा ऊपर के अलग, नीचे के अलग, बीच में के अलग नहीं रहेंगे, थ्रू आउट द सेम प्रॉपर्टीज रहेगी. हेटेरोजेनस मिक्सचर. हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू. अगर यहाँ पे नीचे चावल है, राइस है और ऊपर पानी है, और हमने इसे भी 3 पोर्शन में उठाया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया. अब यहाँ तो सिर्फ राइस हाथ लगेगा, यहाँ पे राइस प्लस वाटर और यहाँ पे वाटर, मतलब प्रॉपर्टी सेम बता रहा? नहीं बता रहा. और कंपोजिशन सेम है, यूनिफॉर्म है? नहीं है. सो दिस इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. सो आज का लेसन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. Chemical and physical properties, then SI units, then we will see mass, volume, apparatus, measuring volumetric apparatus. ये सब हम कल देखेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. बाय बाय.